Hello kids. Today we are going to learn 7th standard geography subject 5th chapter winds. So already I uploaded first and second part. Now in the third part we'll learn about doldrums and horse latitude and monsoon winds, seasonal winds, cyclone, anticyclone and cyclone storm. So, do you know the region up to 5° north and 5° south of the equator remain calm of most of the year and winds don't blow in this region? It is called the equatorial calm zone or doldrums. In the area near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, that is between 25° and 35° north and south, there exists a high pressure belt, and this is also a calm belt. This belt is known as a horse latitude. So, equator means 0°. So, 5° up towards the north and below 5 degrees downward towards the south. So that reason it's called the इक्वेटोरियल जोन और डोल्ड्रम्स. मतलब इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, मतलब इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर मीन्स नॉर्थ एंड 5 डिग्री नीचे मीन्स साउथ. तो वो दोनों रीजन को क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल जोन और डोल्ड्रम्स. Now 25° to 35° north and south, here is a higher pressure belt, and this is called, or this is also a claim belt known as a horse latitude. So as you can see the image of sea breeze and land breeze. So firstly observe carefully sea breeze. So what is the mean by sea breeze? So explanation is that the land is made up of a dense matter. Land is stable and opaque. As the result, heat is transferred at a greater speed and in a higher proportion. Hence, land gets heated quickly. The density of water is comparatively less, water transparent and unstable. Hence, water does not get the heat quickly. As a result, the air pressure in the land and water area is different. Means land is made up of a dense matter and land is stable and opaque. So land dense matter से बना हुआ है, opaque है. Opaque means what? The light doesn't transfer one मीडियम टू अनदर मीडियम. मतलब opaque ऑब्जेक्ट जैसे कि दीवार पे अगर हम टॉर्च ऑन करते हैं तो लाइट ट्रांसफ़र होकर दूसरे साइड में नहीं जाती, तो वो क्या हुआ? opaque ऑब्जेक्ट. अपना ह्यूमन बॉडी, हमारे ऊपर भी लाइट ऑन करेंगे तो लाइट ट्रांसफ़र होकर दूसरे साइड नहीं जाती है, तो वो भी क्या हुआ? opaque ऑब्जेक्ट. So opaque means the light doesn't transfer one side to another side, that is the opaque object. So land is the opaque. So as the result heat transfer at a greater speed and higher proportion. So जिसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में, जिसके वजह से लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. एज compared to water. Now density of water is comparatively less and water is transparent and unstable. Water क्या है? ट्रांसपेरेंट है और अनस्टेबल है, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है और ट्रांसपेरेंट है. सो लाइट जब उसके ऊपर फॉल होती है तो वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रैवल करती है और अनस्टेबल होने की वजह से वो जल्दी गर्म नहीं होता, हॉट नहीं होता, जल्दी गर्म नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एयर प्रेशर, एज द रिजल्ट एयर प्रेशर इन द लैंड वाटर एरिया इज़ डिफरेंट. मतलब एयर प्रेशर वाटर एंड लैंड में क्या होता है? अलग अलग होता है. सो इन शॉर्ट ये है कि जहाँ लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और वाटर है जो बहुत स्लोली गर्म होता है, मतलब हीट होता है. दोनों के एरिया क्या है? डिफरेंट. एयर प्रेशर लैंड और वाटर पे क्या होगा? डिफरेंट होगा. In the coastal area, land get heated during a daytime. Hence, the air on the land also get heated, and the air pressure on the land decrease. The sea water get heated slowly. Hence, the air is less heated and the air pressure remain high. Winds blow from the sea towards the land are called a sea breeze.
मीन्स इन द कोस्टल एरिया लैंड गेट हीटेड ड्यूरिंग अ डे टाइम. सो कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, सी बीच होता है, तो वहाँ के जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं डे टाइम पे. सो एयर ऑन द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड. तो वहाँ का जो एयर होता है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का एयर प्रेशर क्या है, लो है. एयर प्रेशर ऑन द लैंड डिक्रीज. द सी वाटर गेट हीटेड स्लोली. जो सी वाटर है वो बहुत स्लोली हीट होता है, जिसके वजह से वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो क्या है, हाई है. सो विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड आर कॉल्ड सी ब्रीज. तो हमेशा विंड्स कैसे ब्लो होता है, हायर प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. तो हायर प्रेशर एरिया कहाँ पर है, सी पे है, और लो कहाँ पर है प्रेशर एरिया, लैंड पे. तो एयर ब्लो कहाँ से होगा, सी टू लैंड, मतलब वो क्या हुआ, सी ब्रिज. एट द नाइट लैंड कूल डाउन faster as compared to sea, and therefore as a higher pressure, hence the land bridge blow from land towards the sea. So in short ऐसे याद रखना है कि जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से एयर ब्लो होगा लो प्रेशर की तरफ. जैसे कि डे टाइम पे लैंड बहुत ज़्यादा हीटेड है तो वहाँ का एयर प्रेशर क्या है, लो है, और सी कम हीटेड है, सी वाटर कम हीटेड है, मतलब बहुत कम गर्म है, स्लोली स्लोली गर्म होता है, तो वहाँ का एयर प्रेशर क्या है, हाई है. तो हमेशा हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, मतलब सी के यहाँ पे जब हायर प्रेशर होगा तो वो लो की तरफ जाएगा विंड्स. सो सी ब्रिज होगा वो. रात के टाइम पे लैंड बहुत कूल हो जाता है और वाटर जो रहता है वो वार्म रहता है, गर्म होता है, सी वाटर गर्म रहेगा. सो एट द नाइट land is cooled, that time air pressure is high and sea water is warm, तो एयर प्रेशर इज लो. सो लैंड टू सी जाने वाले जो एयर ब्लो होंगे वो क्या होगा, लैंड ब्रिज. आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट. हायर प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया में विंड्स ब्लो होते हैं. सो दिन के टाइम पे लैंड गर्म है तो यहाँ एयर प्रेशर कम है, सी पर ज़्यादा एयर प्रेशर है, तो सी टू लैंड एयर विंड्स होगा, ब्लो होगा, दैट मतलब वो क्या हो गया, सी ब्रिज. रात के टाइम पे लैंड बहुत कूल है, मतलब वहाँ का एयर प्रेशर ज़्यादा है, सी वाटर है तो वहाँ का एयर प्रेशर कम है. सो लैंड टू सी की तरफ विंड्स ब्लो होंगे, तो ये क्या हो गया, लैंड ब्रिज. Monsoon winds are in fact sea and land breeze blowing on a large scale. Most of the precipitation means, in the last video I explained about precipitation. Precipitation means rainwater, storm, snow, these are all the precipitation. So precipitation in the Indian subcontinent is the effect of monsoon winds. After crossing the equator, they blow from southwest towards the Indian subcontinent during the period from June to September. They are called the southwest monsoon and they are full of moistures. तो मानसून विंड्स ब्लो इन साउथ वेस्ट टूवर्ड्स द सब इंडियन कॉन्टिनेंट फ्रॉम जून टू सितंबर. इट्स कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून. मतलब जून टू सितंबर में जो मानसून्स होते हैं वो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून है, और फुल ऑफ क्या रहते हैं, मॉइस्चर्स रहते हैं. जो नॉर्थन की तरफ से सितंबर टू दिसंबर में जो मानसून्स रहते हैं तो वो क्या रहेगा, ड्राई विंड्स रहेगा. मतलब सितंबर टू दिसंबर बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एरिया डेवलपिंग नियर द इक्वेटर, विंड्स ब्लो फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट टूवर्ड्स द इक्वेटर. वो इक्वेटर की तरफ जाते हैं, वो विंड्स इक्वेटर की तरफ ब्लो होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एयर मतलब विंड्स कैसा होगा, ड्राई होगा. नॉर्थ ईस्ट मानसून. Cyclone. So as you can see the image, low pressure area is surrounded by high pressure area, so it's denoted by L. So low pressure area is denoted by high pressure area. So cyclone condition are created when a low pressure area is surrounded by high pressure area. In this condition, winds start blowing towards a low pressure area from the surrounding high pressure area. So साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर एरिया सेंटर में है, लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया. सो हाई प्रेशर एरिया विंड्स ब्लो टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, मतलब सब सारे विंड्स कहाँ आएंगे, लो प्रेशर एरिया की तरफ आएंगे.
So wind started blowing towards a low pressure area from surrounded high pressure area. मतलब high pressure area से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे किसकी तरफ, लो प्रेशर एरिया की तरफ, साइक्लोन में। ये याद रखना है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डिफरेंस। तो साइक्लोन का सेम अपोजिट होता है एंटी साइक्लोन। एक बार साइक्लोन समझ में आ गया तो एंटी साइक्लोन समझ में आ जाएगा। तो साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हायर प्रेशर एरिया एंड विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। मतलब एरो से ही इंडिकेट होता है कि जितने भी विंड्स ब्लो हो रहे हैं वो हाई टू लो की तरफ ब्लो हो रहे हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द साइक्लोनिक winds in the northern hemisphere move in anti-clockwise direction. Anti-clockwise means what? सो नॉर्मल घड़ी 12, 1, 2, 3 ऐसे चलती क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, 12, 11, 10 ऐसे। जैसे कि ये है एंड क्लॉक, सो ये रोटेशन क्या हुआ, क्लॉकवाइज, और ये रोटेशन क्या हुआ, एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक का रोटेशन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। So whereas the move in the clockwise direction in the southern hemisphere, so southern hemisphere में clockwise direction होगा, ये southern hemisphere में clockwise, और anti clockwise direction northern hemisphere में होगा। During a cyclone, the sky is cloudy, winds blow with a very high velocity, and it's rain heavily. The area affected by cyclone is limited. The duration, velocity, direction and place of origin of these winds is unpredictable. अभी रिसेंटली ही जून में रिसेंटली ही साइक्लोन आया था, बहुत ज़्यादा स्पीड में, टाइफून साइक्लोन जिसे सब बोल रहे थे। सो साइक्लोन जो आया था वो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, क्लाउडी वेदर था, पूरा स्काई पूरा क्लाउडी था, बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा स्पीड में, वेलोसिटी में हवाएं चल रही थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो वो साइक्लोन का जो सेंटर था वो अनप्रिडिक्टेबल था, जो अलीबाग, थाने, मुंबई और गुजरात साइड से होते हुए वो सब एरिया कवर करते हुए आ रहा था। सो ड्यूरिंग अ साइक्लोन the sky is cloudy, winds blow with the very high velocity and it's rained heavily. The area affected by cyclone is limited. The duration, velocity, direction and place of origin of these winds is unpredictable. On the weather map, the center of the cyclone is represented by L shape में दिखाई देगा। और साइक्लोन सिस्टम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब वो मूव होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, गोल गोल घूमते हुए जाते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में। साइक्लोनिक स्ट्रोम, सो साइक्लोन ऑकरिंग इन अ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन अलोंग द कोस्ट ऑफ द जापान, चीन, फिलीपींस एक्सेट्रा इज नोन एज द टाइफून्स एंड दिस स्ट्रोम अराइज इन द मंथ बिटवीन जून एंड अक्टूबर। तो जून और अक्टूबर मंथ में जब जो साइक्लोन स्ट्रोम्स आते हैं वो क्या है, टाइफून्स हैं। एंड ड्यू टू द हाई वेलोसिटी विंड्स एंड हैवी रेन दिस प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव, मतलब सारा तहस नहस करते हुए ये हवाएं चलती हैं, स्ट्रोम्स चलते हैं, साइक्लोनिक स्ट्रोम्स। द साइक्लोन इन द कैरेबियन सी
are known as the hurricanes, and these are also destructive in nature. During this storm the minimum velocity of wind is 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की वेलोसिटी से ये स्टॉर्म्स फ्लो होते हैं, ब्लो होते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, ह्यूरिकेन्स. Cyclones also originated in the temperate zone, but they are not so powerful and hence are not destructive. Anticyclone. So under specific atmospheric condition, the air pressure in a particular region increase and the pressure in the surrounded area remain low. In this situation, winds blow from center towards the surrounding area in a circular manner. Means the higher pressure area surrounded by a low pressure area, high pressure area surrounded by low pressure area, एंड विंड्स ब्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, मतलब वो स्प्रेड होगा फ्रॉम सेंटर टूवर्ड्स द सराउंडिंग एरिया इन ए सर्कुलर मैनर. मतलब मिडल में हाई प्रेशर एरिया है तो वो स्प्रेड होगा सर्कुलर मैनर में लो प्रेशर की तरफ, जैसे कि लास्ट इमेज में भी मैं दिखाऊंगी. जैसे कि ये इमेज में देख सकते हो, हायर प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय लो प्रेशर एरिया. सो विंड्स ब्लो फ्रॉम द सेंटर टू लो प्रेशर एरिया, मतलब द विंड्स स्प्रेड अराउंड द हायर प्रेशर एरिया, मतलब जो हायर प्रेशर एरिया से विंड्स हो रहा है वो आउटर साइड में सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहा है लो प्रेशर एरिया की तरफ. ये अपोजिट है साइक्लोन का. साइक्लोन में यहाँ पर हाई प्रेशर की जगह पे लो प्रेशर एरिया था और हायर प्रेशर एरिया सराउंडेड था. अब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया सराउंडिंग में है और मिडल में हायर प्रेशर एरिया है. सो विंड्स जो ब्लो होंगे वो मिड सेंटर्स टू सराउंडेड एरिया में ब्लो होंगे. जैसे डायरेक्शन दिखा रहा है कि हाई टू लो की तरफ विंड्स ब्लो होंगे, मिडल से निकलेंगे और स्प्रेड होंगे चारों तरफ सराउंडिंग में. So in the northern hemisphere the winds blow in a clockwise direction, and where in the southern hemisphere blow in a anti clockwise direction. अपोजिट है यहाँ पे भी. साइक्लोन में नॉर्थ में क्या था, एंटी क्लॉक, और साउथ में क्लॉक था. बट एंटी साइक्लोन में क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है विंड्स का. ड्यूरिंग द एंटी साइक्लोन द स्काई इज क्लियर, स्काई आर क्लियर, विंड्स ब्लो विद द लेजर वेलोसिटी एंड वेदर इज प्लेसेंट. मतलब बहुत स्काई एकदम साफ क्लियर होगा, विंड्स बहुत प्लेसेंटली स्लोली ब्लो होंगे और वेदर भी एकदम प्लेसेंट होगा, मतलब एकदम सीनरी वगैरह बहुत अच्छी रहेगी. प्लेसेंट मतलब बहुत अच्छा वेदर रहेगा एंटी साइक्लोन के टाइम. डिस्ट्रक्टिव नहीं रहता कि सब तहस नहस करते हुए चले जाए. साइक्लोन में सब तहस नहस होता है और एंटी साइक्लोन में प्लेसेंट वेदर होता है, मस्त वाला वेदर रहेगा. So anticyclone generally last for a few days or a week, and such anticyclone originated in temperate zone. On the weather map, the center of an anticyclone is represented by the letter H. Anticyclone कैसे represent करेंगे, by the letter H. Anticyclone are vividly experienced in a higher pressure belt. Winds in these regions are also moving out, and hence the rainfall in such area is quite low.